जी बेटा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है। ओके, सो एल्कोहल are important organic compound, and we do get a lot of reactions from alcohols. तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन की पॉइंट्स हम इसमें कर लेते हैं एल्कोहल्स में। Alcohol's general formula would be CnH2n plus 1, that's the alkyl part, and the OH is the functional group. So that's the general formula for alcohol. And then, the first few alcohols वो मैं इधर लिस्ट करता हूँ, बट बिफोर दैट लेट्स राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, all these alcohols are liquid at room temperature and they are colorless. In fact, इसको हम इधर लिखते थे, they are colorless liquids. Alcohols are colorless liquids. Alcohols are soluble in water. In fact, the organic compound that you have in syllabus, उसमें alcohols and carboxylic acids are soluble in water. हाइड्रोकार्बन्स और इनसॉल्युबल, और जो हेलोजन एल्केन्स हैं वो भी इनसॉल्युबल है। फिर एल्कोहल्स, ऑल्दो दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज दे डू नॉट गेट आयोनाइज्ड इन वाटर। Alcohols are non-electrolytes and alcohols are highly combustible. Most of the organic compounds are combustible, लेकिन not as good as hydrocarbons or alcohol. And because of this property, alcohols are used as fuel, एज अल्टरनेट फ्यूल। अल्टरनेट फ्यूल कहते हैं क्रूड ऑयल के अगेंस्ट हम जो यूज करते हैं ना उसको अल्टरनेट फ्यूल करते हैं। तो alcohols are used as alternate fuel. Now those who have joined just now, after esters we are completing with the alcohols. फिर इसके बाद ऑर्गेनिक में हमारे पॉलीमर्स रह जाएंगे। So I've listed the general formula of alcohol. OH is the functional group and CnH2n plus 1, इसको मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको हम R से इंडिकेट भी कर सकते हैं। तो CnH2n plus 1 alkyl and OH. But when in exam you're asked to write the general formula of an organic compound, we need to write that R complete, like CnH2n plus 1, फिर आगे functional group लगाना आपने उसका। So these are some of the physical properties of alcohols which you're expected to know. इसके बाद कुछ alcohols की मैं examples लिखता हूँ यहाँ पे। So the smallest alcohol is methanol, and then we go like मीथेन से ethanol, propane से propanol, so C3H7OH. So as you go down that way from one carbon to more carbons, so this series make up the alcohol's homologous series, right? This is an alcohol's homologous series. जब आपसे पेपर में वो पूछते हैं फॉर एग्जांपल रैंडमली कि टू व्हाट होमोलोगस सीरीज फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉल बिलोंग्स, तो आप बोलोगे कि प्रोपेनॉल बिलोंग्स टू alcohol's homologous series. Homologous series is the series of compounds which are based on the same general formula. We wrote this definition in the start. तो ये alcohols की homologous series है. And as you go from methanol down towards butanol, you need to remember that again the MR, molecular mass, would increase, and as you go down that way again their density, जैसे बाकी मैंने उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी लिखा था, the density mass per unit volume of the alcohol would also increase because you're getting more and more heavier molecules. Based on that, the boiling points would increase. Alcohols के MR density boiling point increase as you increase the number of carbon in the compound. And now इनमें से if you go from methanol to ethanol, ethanol से अगर आप propanol पे जाते हैं तो they all differ by CH2 group. They all differ by CH2 group. In fact, compounds in one series, एक ही homologous series के जो compounds होते हैं, they differ by similar CH2 group. They ask you these things. अब देखो methanol में और ethanol में, like ethanol has one more carbon in it,
and 2 more hydrogen. And then propanol has 1 more carbon and 2 more hydrogen again. So they all differ by same CH2 group. इसके बाद alcohols में we have the preparation of alcohol by industrial method called fermentation. और उसके बाद फिर alcohols के reaction है 3-4 ये मेरे ख्याल से हम आराम से कर सकते हैं. अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसमें लिखे, मैं पढ़ लेता हूँ. Whereas ये तो बेसिक चीज़ें आसान. Let's move on to preparation of alcohols. Industrial preparation, in fact. Now, industrial preparation of alcohol, ethanol specifically, it's actually done by 2 ways. We have done one method already in alkenes. That is done by alkene, ethene and steam reaction. ठीक है, जो हमने टेम्परेचर हाई प्रेशर पे पढ़ा था लास्ट चैप्टर में एल्कीन्स में. तो आप एल्कोहल्स बना सकते हैं बाय यूजिंग ethene and steam. And the other method that we'll be doing right now is called fermentation. Now, you just need to remember that ethene is a crude oil. अगर आप क्रूड ऑयल को यूज़ करेंगे और ज़्यादा हीट यूज़ करेंगे, that's an endothermic reaction. So you do get alcohol ethanol, but that's not a highly energetically feasible way to make an alcohol ethanol, because ethene is also, I repeat, a type of fuel, and steam is not easily made. You need to heat and high temperature is required. आप अल्कोहल अगर बना रहे हैं इथेनॉल by using steam and ethene method, that's an energy intensive process, but it's not, I mean, it's better than not having any alternate method. तो ये भी यूज होता है लेकिन कम यूज होता है. But fermentation on the other hand, that we'll be doing right now, this method at large scale is used from plant extract fruits and all the carbohydrates and starch, and it's not that energy intensive process, but it takes more time. तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है. ये आप कह लें कि थोड़ा इसके डिसएडवांटेज में आ जाता है. और इसके अलावा इसमें सच कोई प्रॉब्लम नहीं है. द प्रोडक्ट फॉर्म इज नॉट रियली प्योर, प्रोडक्ट इज इम्प्योर, वो भी हम पढ़ेंगे. और उसको निकालने के लिए फिर हमें लंबे काम करने पड़ते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन वगैरह, लेकिन इट्स रिलेटिवली चीपर मेथड. तो ये दोनों मेथड्स के प्लस एंड माइनस हैं. इथीन प्लस स्टीम मेथड इज फास्ट, बट इट्स एनर्जी इंटेंसिव मेथड, और उसमें ज़्यादा हमारा पैसा लगता है. जब आप इंडस्ट्री में किसी रिएक्शन की बात करते हैं तो यू नीड टू कीप इन माइंड द इकोनॉमी पार्ट ऑफ इट. Fermentation might be cheaper because it uses the natural sources, sugar cane, fruit pulp and everything, but it takes more time, takes a couple of days or weeks at least, and the product is not pure. और उसमें से आपको प्रोडक्ट निकालने के लिए फिर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करनी पड़ती है. So right now we'll be covering this fermentation process by which alcohol is made. So fermentation is an important reaction. In fact, alcohol से जो क्वेश्चन आता है ना, तो काफी टाइम उसमें fermentation ही वो पूछ रहे होते हैं आपसे. So fermentation is that process in which starch or carbohydrates or polysaccharides are actually converted into alcohol. Okay. Yeah. So fermentation में starch or carbohydrate are converted into alcohol by the effect of enzymes and produced by the microorganism fungi. So let's write the introduction part here. So it's like process of making ethanol by using starch or carbohydrates and enzymes which are produced by the yeast.
तो ये एक लाइनर अगर आपको कहीं लिखना पड़े कि व्हाट्स फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो उसमें आपने बताना है कि इट्स प्रोसेस वेयर अल्कोहल इज मेड बाय यूजिंग carbohydrates and enzymes. But the other things they ask you, like the small things are like what's the raw material used ये अल्कोहल बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए raw material all comes from like it's starch or sometimes they write polysaccharide. जो बायो वाले बच्चे हैं they would know it, they study this in the biology, but अगर आपकी बायो नहीं भी है तो भी केमिस्ट्री में आपको थोड़ा याद रखना है कि fermentation is process where starch or carbohydrate which are in true bio terms called polysaccharides are used. They're like large glucose molecules in short. They're used from sources like fruit pulps such as grapes, sugarcane, which आपने नाम भी याद रखने इनके, oranges, malts, etc. ये कॉमन फ्रूट्स हैं जो यूज होते हैं. फिर cereals and barleys, etc. So the thing is that these are the most common industrially used starch sources for making alcohol. The raw material may we need carbohydrates or starch coming mainly from the fruit pulp, which include grapes, sugarcane, oranges, cereals, many seeds. In fact, अब तो wheat से भी बनाते हैं. और दूसरा फिर वो आपसे पूछते हैं इसकी conditions required for fermentation process. So the conditions required in fermentation, one, it includes yeast, which is microorganism produce enzyme. And you need to control temperature. So temperature between 25 to 37 degrees Celsius. That's where the enzyme produced by the yeast work best. So it's like to help in enzyme working. Enzymes are biomolecules, biocatalysts. और वो काम नहीं करते कि अगर आप टेम्परेचर बहुत हाई कर दें. हमारी बॉडी में भी टेम्परेचर नॉर्मली 37 के करीब करीब रहता है, एंड आवर बॉडी टेम्परेचर helps most of the enzymes work well in our body. The yeast also is microorganism which makes enzyme. Enzymes are biocatalyst. उन्होंने चेंज करना है कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में, but you need to make sure that the temperature is kept around this, and you need to prevent oxygen. No air or oxygen should be given because that's an anaerobic process जिसमें oxygen required नहीं है. So you need to know the raw material, you need to know the conditions, you need to know okay, why yeast is put into the process because enzymes are produced by it, what temperature is used, and then it should be anaerobic, right? एंजाइम्स का बेटा मैं बता देता हूँ, वैसे इतना डिटेल वो आपसे पूछते नहीं है, मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ. इसको अपनी साइड पे नोट कर ले, फर्मेंटेशन के अंदर बेशक मत लिखें. एंजाइम्स आर protein in nature and they are biocatalysts. हमने केमिस्ट्री में पढ़े कैटलिस्ट. Catalysts are substances which speed up the rate of reaction without being changed. Now, biocatalysts are called enzymes and they are technically protein in nature and they help speed up all the biochemical reactions. In fact, हमारी बॉडी में all the reactions, most of the reactions are actually controlled by enzymes. और ये बेसिकली रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं एट दिस लिमिटेड टेम्परेचर. इससे ज़्यादा डिटेल में रिक्वायर्ड उस तरह से नहीं है, बट आपको याद रखना है कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, दे स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दे डोंट गेट चेंज्ड, प्लस दे आर प्रोटीन इन नेचर एंड इफ द टेम्परेचर इज नॉट केप्ट अराउंड दिस, तो प्रोटीन डी नेचर होते हैं, फिर वो काम सही से नहीं करते. इसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो आपसे पूछते हैं इसमें फर्मेंटेशन में, दैट्स द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. तो वो आप इसके आगे नोट कर लेंगे. So the equation for fermentation process includes
a glucose molecule or saccharide. Typically, we take glucose C6H12O6, and it's changed into by the effect of yeast or enzyme in 25 to 37 degrees Celsius. So the plant extracts glucose उसमें से निकलेगा जो carbohydrate, that's mostly aqueous, right? It has a lot of water in it. तो आप इसकी states को पूछते नहीं हैं आपसे, but you should know कि it's like aqueous material. जैसे आप grapes को crush कर लेते हैं, oranges को, इन चीज़ों को, and you put yeast or microorganism into it at this controlled temperature, so it leads to formation of alcohol, ethanol, and beside this byproduct CO2 is formed. The alcohol formed here is aqueous. I think by putting 2 and 2 here, it will balance even. Or CO2 gas is formed, bubbles. And that gas formed is not too fast. उससे क्या होता है कि जो bubbles हैं वो बनते हैं लेकिन slow बनते हैं. So we see bubbles of CO2 every now and then. अब इसमें what has happened here, that this is like a carbohydrate or glucose molecule, and that changed to ethanol, alcohol, and beside this CO2 was formed as a byproduct. तो आपको ये सब याद रखना है. The byproduct is the other molecule which is made during the main reaction. हमारा organic product is the main product that we want to make, the alcohol. But beside this, CO2 is being formed as well. Ethanol. And then they ask you, how would you know that the fermentation is going on? And that's what they do in industry even. So the rate or bubbles of CO2, the rate at which bubbles of CO2 are formed indicates that the rate of fermentation. तो बड़े बड़े जो फर्मेंटर्स हैं उनके साथ इस तरह के गेजेस लगे होते हैं विच मॉनिटर द अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म पर यूनिट टाइम, और उससे पता चल रहा होता है कि फर्मेंटेशन हो भी रही है कि नहीं, या कितना फास्ट हो रही है, कितना स्लो हो रही है. तो ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछते हैं. बट इफ़ यू आर सॉर्ट ऑफ supposed to tell कि how would you know that the fermentation is going on, you just mention that the bubbles of CO2 formed indicate the reaction happening. Now, in this reaction, the alcohol formed in product is not really pure because not 100% of glucose changes into alcohol, plus lots of fruit extract, solid particles, debris, along with water is still there. इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि how would you get the pure sample of alcohol from this solution, उसके लिए फिर आपने ये चीज़ ऐड करनी है. To get pure ethanol from product mixture, get the pure sample of alcohol from the product mixture, you need to follow these two steps. Like you need to filter the mixture, जो remaining आपके पास बच जाएगा तो आप filter करेंगे. That is to remove all the solid particles and debris and everything. And then you need to perform fractional distillation. So when you perform fractional distillation, उसमें क्या होगा कि alcohol would separate. In fact, the CO2 formed here, that you don't need to worry about क्योंकि CO2 gas है वो तो खुद ही चली जाएगी. Any leftover carbohydrates or solid particles will be removed by filtration, but the remaining mixture will be aqueous alcohol. Aqueous alcohol means उसके साथ water के साथ alcohol होगा. So if you wish to get rid of water and you want to get pure alcohol, उसके लिए हम लोग करते हैं fractional distillation जो आपने techniques में पढ़ा था. So perform fractional distillation to get pure ethanol. अब ये जो ethanol बनता है, this is generally mainly used as an alternate fuel. ठीक है. वैसे अल्टरनेट फ्यूल के लिए जो हमारे कंट्री में हम देखें, हम पेट्रोल के साथ क्या यूज़ करते हैं,
अब तो खैर कम हो गया। वी यूज टू यूज लॉट ऑफ सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अभी भी आप जीटी रोड पे जाएं तो यू सी दो सीएनजी स्टेशन जहाँ पे गाड़ियों में पेट्रोल के अगेंस्ट सीएनजी डलती है। But that's really unwise to do it. In fact, because in last 15-20 years, we used so much of CNG that now we don't have enough, domestic gas available. घरों में भी नहीं है, इंडस्ट्री के लिए भी नहीं है, अब कम हो गया। लेकिन जिन कंट्रीज में पहले ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी सीएनजी वाली, दे रियलाइज्ड इट एंड दे स्विच टू अल्कोहल मेकिंग। वो उन्होंने फिर इथेनॉल बना के उसको एज अल्टरनेट फ्यूल स्टेशन लगा के अल्कोहल के, और वो गाड़ियों में यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि यू यू हैव द कंट्रोल ओवर मेकिंग ऑफ अल्कोहल। आप शुगर केन ग्रो करें, फ्रूट एक्सट्रैक्ट से बनाएं अल्कोहल, जितना बनाना है यूज़ करें। यू आर नॉट डिप्लीटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक क्रूड ऑयल। लेकिन इसके लिए फिर लार्ज स्केल पे करने के लिए इट्स रियली एक्सपेंसिव, बिकॉज आपको ट्रेडिशनल क्रॉप्स को चेंज करना पड़ता है। इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, ये कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अब लीड कर रहे हैं। दे आर मेकिंग मोस्ट ऑफ द शुगर केन। वो शुगर केन से फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाते हैं और उसको इन प्लेस ऑफ फ्यूल यूज़ करें। ये बातें थोड़ी आपने याद रखनी है। अच्छा, अब तक जो मैंने एक्सप्लेन किया अल्कोहल में, मैं क्विक रिकैप देता हूँ, फिर हम रिएक्शंस पे जाते हैं। अल्कोहल्स जनरल फॉर्मूला CnH2n plus 1 OH. These are some of the physical properties of alcohols. They are liquid, colorless, soluble in water, but they don't pass current. They are combustible, and that's why they're used as fuel. फिर अगर मैंने कुछ अल्कोहल्स की एग्जांपल्स लिख के, फ्रॉम मेथनॉल टू ब्यूटानॉल, their MR density boiling point increase, and then we done the preparation of alcohol. It's done in two ways in industry: alkene plus steam, जो हमने लास्ट ऑफ चैप्टर में पढ़ा था, दूसरा fermentation that we just done. Fermentation की details important है. It's like process in which alcohol is made by using yeast or microorganisms. Yeast or microorganisms. These are like small single cell like what do you say? Um, Organisms which produce enzymes which convert starch or carbohydrate or glucose into yeast. और ये बेसिकली हमारे जो सोर्सेज हैं प्लांट्स के, फ्रूट एक्सट्रैक्ट उनसे आते हैं और बाकी चीज़ों से। तो स्क्रीनशॉट का टाइम ही बड़ा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। स्क्रीनशॉट से तो क्या लिखोगे? आई ट्राई एंड सेंड द रिकॉर्डिंग। इसके बाद मेरी क्लास है, लेकिन उसमें कोशिश करूंगा कि आज सेंड कर दूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है? उससे आप प्रॉपर रिकॉर्डिंग देख के फिर नोट्स बनाएं। उसके बाद जनाब हमने इसकी इक्वेशन लिखी कि ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट होता है इनटू अल्कोहल एंड CO2। फिर द बबल्स, द रेट ऑफ बबल्स ऑफ CO2 बीइंग फॉर्म्ड इंडिकेट द रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर आपने अल्कोहल निकालनी है प्योर इसमें से, तो आप करोगे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन आफ्टर फिल्ट्रेशन। अच्छा, इन बिटवीन एक रिएक्शन है जो कहीं भी फिट नहीं होता, और वो आपसे पूछते हैं केमिस्ट्री में, उसको मैं इधर लिख रहा हूँ। उसके बाद हम अल्कोहल के रिएक्शंस पे जाएंगे, ठीक है ना? अब जिन बच्चों की बायो है दे नो इट ऑलरेडी, नहीं भी है तो आपने याद रखना है। Like photosynthesis. So we are not going to study anything detail में about photosynthesis. Like photo mean light, synthesis to produce. So it's like process by which uh, glucose is made in plants using sunlight. तो ये जो CO2 gas है in the atmosphere plus water in the plants, um, plants ये काम कर सकते हैं। So this leads to making of glucose. It's like C6H12O6, and beside this oxygen is formed. तो ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली आपने याद रखना, इट हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ये प्लांट्स में काम होता है, ग्लूकोज बनता है। अब ये MCQs में रैंडमली आपको इसकी इक्वेशन नजर आएगी, और मैंने इसलिए बता दी इधर क्योंकि फोटोसिंथेसिस और फर्मेंटेशन रिएक्शन में डिफरेंस है। फर्मेंटेशन में ग्लूकोज चेंजेस टू अल्कोहल एंड CO2 इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इधर क्या हो रहा है कि CO2 plus water combine to make glucose, and oxygen is given off as gas. This is done by plants in the process called photosynthesis, and without light it does not happen. Plus photosynthesis is an endothermic process. है ना? इसमें चूंकि लाइट यूज हो रही है, तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको भी आप अपने नोट्स में कहीं साइड पे या इसी जगह लिख लें, और इट हैज़ नथिंग टू डू विद द अल्कोहल और फर्मेंटेशन अदरवाइज, जस्ट
रैंडम रिएक्शन इन केमिस्ट्री दे हैव पुट इट। बायो के बच्चों को तो आइडिया होता है, वैसे बायो है या नहीं, आप लोगों ने ग्रेड 7 8 साइंसेज में ये पढ़े होते हैं रिएक्शंस, इधर फिर वापस कभी वो पूछ लेते हैं। Now we go on to the reactions of alcohol. They're quite easy and important reactions. तो उसकी अब हेडिंग दे लें, reactions of alcohol. So I list all the reactions of alcohols. First one is combustion, like burning alcohol in air. Second reaction of alcohol is oxidation. And the third one is dehydration. These are the three main reactions. बाकी वो esterification वो हमने carboxylic acid में पढ़ लिया. That could fit here as well because alcohols could react with carboxylic acid to make esters. उसको उधर दोबारा लिखने की हमें जरूरत नहीं है. So the first one is combustion. In combustion, we burn an organic compound in the presence of oxygen. So this ethanol, which is used as a common fuel, would be burned with oxygen, and you need flame or spark for combustion. And that makes CO2, 2 mole CO2, beside that 3 mole water. Combustion is an exothermic reaction. इसमें काफ़ी सारी heat produce होती है, and that we use, I mean, in moving different engines and combustion engines में alcohol burn करते हैं because alcohol is a fuel. We just studied that. Now alcohol, इसमें अगर आप ऑक्सीजन बैलेंस करें तो देखें प्रोडक्ट साइड पे 2 times 2 4 + 3 7 oxygen. So when you balance, you need to count oxygen in the alcohol in balancing also, right? So I need 7 oxygen in total. 1 is in alcohol and I need 6 more, so I'll put 3 here. So 3 times 2 6 plus 1 7 oxygen. Alcohol is liquid, oxygen gas, CO2 gas, water formed initially as gas in this reaction. So this is where combustion of an alcohol leads to formation of CO2 and water. अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यही वाली इक्वेशन याद करके चले जाएं पेपर में. दे कुड गिव यू एनी अदर अल्कोहल. लाइक अगर आप प्रोपेनॉल की कंबशन करेंगे तो भी CO2 वाटर ही बनेगा, ठीक है ना. लेकिन द डिफरेंस इज के दिस विल गिव मी 3 मोल CO2 एंड 4 मोल वाटर. बैलेंसिंग सिर्फ चेंज होगी, प्रोडक्ट्स विल रिमेन सेम. अच्छा, अब इसके साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने लिखना है कि अल्कोहल रेजिस्ट इनकम्प्लीट कंबशन. जो क्रूड ऑयल की होती है ना इनकम्प्लीट, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा होता है. सो अल्कोहल्स रेजिस्ट इनकम्प्लीट कंबशन एंड दैट्स अ प्लस पॉइंट बाय द वे. और क्यों रेजिस्ट करते हैं? बिकॉज अल्कोहल इज अ फ्यूल which already contains oxygen in it, right? Crude oil hydrocarbon में oxygen नहीं होती, they just have carbon hydrogen. But alcohol is such a fuel which already has oxygen, so because of that it's very difficult to give limited oxygen supply. बस इतना याद रखें कि alcohols resist incomplete combustion as they already contain oxygen in them. So it's a fuel which already has oxygen, plus आप बाहर से स्टोर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो it's hardly to get any limited oxygen supply. तो इस वजह से इनकी इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होती. तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, आई होप आपने लिख लिए. आई गो ऑन टू ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन भी अभी कर लेंगे, हमारा आराम से खत्म हो जाएगा. So the second reaction of alcohol is really important. That's oxidation. अब ऑक्सीडेशन की एक जनरल इक्वेशन पहले मैं इधर लिखता हूँ. An alcohol when it is oxidized, और ऑक्सीडेशन करने के लिए हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज एसिडिफाइड KMnO4 or potassium dichromate. Any of the two oxidizing agent can be used. Acidified. So this leads to formation of carboxylic acid, plus water is formed as a byproduct.
This is general equation for oxidation of an alcohol, that when an alcohol is oxidized using an oxidizing agent which could be KMnO4, potassium permanganate, or K2Cr2O7, so this leads to formation of another organic compound, carboxylic acid, and water is the byproduct. This reaction is called oxidation. ऑक्सीडेशन में और कंबशन में डिफरेंस होता है, ये याद रखना आपने, ठीक है। कंबशन में इज लाइक माइंडलेस प्रोसेस वेयर जस्ट बर्न एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और आपको कुछ भी नहीं मिलता एक्सेप्ट CO2 वाटर, नथिंग यूजफुल है एक्सेप्ट हीट। तो कंबशन हम करते हैं जब हमने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी लेनी होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन इज वेयर वी कन्वर्ट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू एन अनदर यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में इंडस्ट्रियल रिएक्शन है जिसमें carboxylic acids are actually made by this method। तो ये होता है। हाँ तो छोड़ दो ना बेटा, क्या जरूरत है, वो कैम्ब्रिज की एंट्रीज तो नवंबर में भी जाती हैं, अभी तो पॉलीमर्स रहते हैं। अच्छा, देखें, अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब इसकी मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे देखें इथेनॉल है, CH3CH2OH, और अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपने दिखाना है कि एरो पे वन ऑफ द टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, एनी ऑफ द टू कैन बी यूज्ड and it needs heat. So sometimes they ask you to show oxygen in your equation. In fact, oxidizing agent's job is to provide oxygen. उसको फिर आपने इस तरह से एटॉमिक स्टेट में लिखना है ब्रैकेट्स में। कंबशन में O2 यूज होता है, इसमें एटॉमिक ऑक्सीजन दैट कम्स फ्रॉम दिस KMnO4, तो फिर आपने ऐसे ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखना है। So when this ethanol is oxidized, what you just need to do is to convert this carbon with the OH into carboxylic acid. So it will form CH3, ये मिथाइल उधर ही रहेगा। This carbon will change into carboxylic acid, so it becomes COOH। ये बन गया इथेनोइक एसिड, और इसके ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन्स थे दे गो टू वाटर बाय प्रोडक्ट। अब अगर आप नोट करें तो इसमें टोटल मेरे पास देखो कितने ऑक्सीजन हो गए राइट हैंड साइड पे, 1 2 3, इधर कितना 1, तो आई नीड 2 मोर ऑक्सीजन, आई विल पुट 2 विद इट। सो व्हेन यू आर आस्क्ड टू शो ऑक्सीजन इन योर इक्वेशन, तो आपने एटॉमिक ऑक्सीजन लिखनी है और फिर बैलेंस भी करना है। तो व्हाट हैज हैपेंड हियर इसके, ये जो कार्बन के दो हाइड्रोजन्स थे इधर, दे हैव गॉन इनटू वाटर टू मेक बाय प्रोडक्ट, और जब इधर से दो हाइड्रोजन निकलेंगे इसी कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन आके लग जाएगा, दैट विल बिकम CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया खुद ही। बस आपने इसकी दो हाइड्रोजन हटाने होते हैं। इन शॉर्ट, जिधर आपको अल्कोहल नजर आएगा OH, उसको आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देना और बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन। अच्छा, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट पोटाशियम एंड मैग्नीज हियर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो मेटल्स हैं दे आर स्पेक्टेटर आयंस, नोबडी इज आस्किंग यू टू शो देयर बैलेंसिंग एंड एवरीथिंग, राइट। तो आपने मेन क्या काम करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रॉ करने होते हैं। एक एग्जांपल इसमें और ऐड करें, सो इफ आई हैड प्रोपेनॉल 3 कार्बन अल्कोहल, अभी देखें ये इथेनॉल था और इथेनॉल से मुझे मिला इथेनोइक एसिड। जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड हो अल्कोहल होगा वैसे ही एसिड बनेगा, बट इफ इट्स लाइक इथेनॉल या प्रोपेनॉल, अब वो OH ऊपर लगाए नीचे लगाए उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ पहले वाले इक्वेशन में ऊपर दिखाया है, इधर राइट पे कर दें हम। एंड इवन इफ यू डोंट शो oxygen in your equation, still even with the potassium dichromate same reaction will happen। आपने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना है। अब करना आपने सिंपल ये है कि जो CH2 वाला कार्बन है इसकी हाइड्रोजन हटा के C डबल बॉन्ड O लगा दें, दिस विल बिकम CH3 CH2, the first two carbons are still there and the CH2 changes to carboxylic acid। ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड, एंड देन वाटर इज द बाय प्रोडक्ट। सिलेबस में वैसे इथेनॉल की ऑक्सीडेशन है बस, लेकिन सिलेबस पे आपने नहीं रहना, पास पेपर में वो आपसे हर तरह की चीज़ें पूछते हैं। ऊपर जनरल इक्वेशन याद रखें और उसके अकॉर्डिंगली आपने कंडीशंस और रिएजेंट्स याद रखने हैं।
आई रोट एसिडिफाइड हियर। एसिडिफाई का मतलब होता है कि आप कोई सल्फ्यूरिक एसिड HCl थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं, बिकॉज दिस एसिड एक्ट एज कैटलिस्ट हियर। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, वो जब तक आप एसिडिफाई नहीं करते दे डोंट वर्क वेल। तो आपने उसको एसिडिफाई याद रखना है कि कैसे किया है। हाँ, वो मैंने भी एक्सप्लेन कर दी। एसिडिफाइड मीन दैट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ acid was added into oxidizing agent and that act as a catalyst. In fact, without acid, the working of oxidizing agent is not that good. तो ये हमने एग्जांपल लिख ली। अब थर्ड रिएक्शन हमारा अल्कोहल का है, डिहाइड्रेशन। बस ये ख़त्म करते हैं लास्ट। इसके बाद हमारे पॉलीमर्स रह जाएंगे, वो प्रॉब्ली हम लोग मंडे मैक्सिमम ट्यूसडे तक ख़त्म कर देंगे। एंड साथ ही हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो हमारा लास्ट पोर्शन है, एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्री। So the third reaction of alcohol is dehydration. जब आप किसी चीज़ के साथ डी ई लगा देते हैं ना, तो डी ई का मतलब होता है कि जो अगला वाला पार्ट है उसका ऑपोजिट। तो डिहाइड्रेशन मीन ऑपोजिट ऑफ हाइड्रेशन, सो इट्स लाइक रिमूविंग वाटर। सो इट्स रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेशन होता है एडिंग वाटर। सो व्हेन एन अल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड, it leads to formation of alkene प्लस what is formed as byproduct। तो ये बेसिकली हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का ऑपोजिट है। एल्कीन की हाइड्रेशन से अल्कोहल बनते हैं, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से एल्कीन वापस बनते हैं। एंड फॉर डिहाइड्रेशन यू नीड टू रिमेंबर वी यूज concentrated sulfuric acid प्लस हीट। इसमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं, वैसे 170 तक होता है। सो आइदर वी यूज concentrated sulfuric acid as a dehydrating agent, or you could use catalyst aluminum oxide plus heat। एनी ऑफ द टू कंडीशंस कैन बी यूज्ड। इन फैक्ट अगर आप देखें कि अल्कोहल के अगेंस्ट उन्होंने रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड दिखाया हुआ है, तो भी आपने एल्कीन बना देना है, और अगर कैटलिस्ट दिखाया हुआ है कोई, तो भी आपने एल्कीन ही बनाना है। सो एनी ऑफ द टू कंडीशंस, मोस्टली इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है कंसनट्रेटेड। लेकिन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आई मीन इट टेक्स आउट वाटर। जब किसी को बर्न हो जाता है, फायर से बर्न होता है, तो भी द स्किन टर्न्स ब्लैक, बिकॉज हमारी बॉडी में जो सारा वाटर है टिश्यूज में वो निकल जाता है एंड कार्बन इज लेफ्ट। सो बर्न कॉजेज स्किन टर्न ब्लैक। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड से अगर किसी को बर्न हो, तो वो भी स्किन ब्लैक कर देता है, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड टेक्स आउट ऑल द वाटर एंड कार्बन इज लेफ्ट। लेट्स राइट द एग्जांपल। सपोज अगर हमारे पास इथेनॉल है, हमारा फेवरेट, और उसकी आप करें डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा कि आपको इस तरह एग्जामिनर लिख देगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट। सो व्हेन यू सी दिस काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग टू एन अल्कोहल, यू शुड नो कि अब इसमें से आपने वाटर निकाल देना है और एल्कीन बन जाएगा। अब वाटर कैसे निकालना, देखिए, द कार्बन विच हैज OH, यू विल टेक इट्स OH, और साथ वाले कार्बन से एडजेसेंट कार्बन यू विल टेक हाइड्रोजन। सो यू रिमूव OH फ्रॉम द कार्बन, अल्कोहल वाला OH निकाल दें और साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन। सो व्हेन यू टेक आउट हाइड्रोजन फ्रॉम एयर, OH फ्रॉम एयर, दीज टू कार्बन विल हैव फ्री बॉन्ड। जब इन पे बॉन्ड फ्री होगा तो क्या करेंगे, ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इट विल टर्न इनटू एन एल्कीन ऑलरेडी, इथीन। तो वाटर HOH जाके वाटर बना देगा। द टेम्परेचर इज हाई, तो वाटर इज टिपिकली फॉर्म्ड एज गैस है। तो इधर हुआ ये है कि जिस कार्बन पे OH था, आपने वो OH निकाल दिया, साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दिए, एंड द कार्बन्स मेड अ डबल बॉन्ड। दैट्स हाउ अल्कोहल्स चेंज टू एल्कीन। एक और एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। ये मैंने डिस्प्लेड फार्मूला में लिखा है। पेपर में अगर इसको एग्जामिनर यूं भी लिख दें, तो आपने घबराना नहीं है। देखो C2H5 है, ये बेसिकली इथेनॉल है ना, तो आई कुड राइट इथेनॉल एज C2H5OH। इसको हमने ट्रीट किया विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसे एल्कीन बन गया, इथीन। इसको भी अगर मोलिकुलर फॉर्म में लिख दें तो दैट विल बी C2H4। So many time in MCQs they give you these equations in molecular form.
फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कैसे लिखनी है। दिस इज C2H5 1 2 5 and OH, and this is ethene water. So both ways you're supposed to know the same thing is happening. First one is displayed equation, second is molecular, but product same is. एक एग्जांपल और लिख लें. If I had propanol, propanol has 3 carbon and OH. और इसकी अगर मैं डिहाइड्रेशन कर देता हूँ, मैं भी कैटलिस्ट यूज कर लें या सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लें. सपोज अगर इधर कैटलिस्ट लिखा हो AlO3 एंड हीट, यू शुड नो कि सेम थिंग विल बी फाउंड. करना आपने क्या है कि जिस कार्बन पे OH है आप इसका OH ले लें, और इस कार्बन का एडजेसेंट ये भी है और ये भी है. यू कैन टेक हाइड्रोजन फ्रॉम एनी ऑफ द 2 कार्बन. सपोज अगर मैं इसका हाइड्रोजन लेता हूँ, एक साइड से हाइड्रोजन लेंगे, दोनों साइड से नहीं जा सकते. सो आई टुक OH फ्रॉम हियर and hydrogen from the right side carbon. So these two bonds will be free on these carbons and these will make double bond here. ठीक है. तो अगर आप हाइड्रोजन लेफ्ट से लेते तो भी सेम थिंग, प्रोपीन ही बनना था. एक साइड से आप OH निकाल दें, हाइड्रोजन निकाल दें. दिस would lead to formation of propene, और CH3. अब मिडिल कार्बन से OH चला गया और आगे डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन आपने इसका कम कर दिया, प्लस वाटर. सो दिस थिंग इज लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रोपीन, 3 कार्बन के एल्कीन. सो दिस रिएक्शन वुड बी कॉल्ड डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें आप हीट कर रहे हैं. ये चीज़ें याद रखनी है. साथ साथ ऊपर मैं लिख देता हूँ, डिहाइड्रेशन इज एंडोथर्मिक. वापस इस पे आ जाए जो लोग कॉपी कर रहे हैं. दैट्स हाउ alcohol changes to an alkene after dehydration reaction. ये हमारे अल्कोहल्स कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट जो पॉलीमर्स हैं वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में. इसमें किसी का कोई क्वेश्चन और डाउट है पूछ लेंगे प्लीज. आई होप आपने लिख लिया, तो मैं एक दफ़ा रिकैप कर देता हूँ इसको. वी डन alcohols today, general formula, physical properties, some common examples of alcohols, and the process by which alcohols are made by steam and alkene, and fermentation. फर्मेंटेशन को हमने डिटेल में पढ़ा जो सिलेबस में. The raw material is starch or polysaccharides which come from fruit extract, cereals, wheat, barley, seeds. कंडीशंस में यीस्ट चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए ताकि एंजाइम सही काम करें. एनारोबिक, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए. एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन which are biocatalysts. They speed up the rate of reaction and they don't get changed. Fermentation की equation है where glucose changes to alcohol and CO2 is water and byproduct. तो उसमें से the rate at which bubbles of CO2 are formed indicate the fermentation happening in fast or slow. And to get the pure sample of alcohol, you need to filter out your solution mixture and perform fractional distillation. So water चला जाएगा और alcohol अपने boiling temperature पे निकल आएगा. Alcohol made by this method mostly used as fuel. फिर एक रिएक्शन मैंने बीच में फिट किया है क्योंकि इसकी और कोई जगह नहीं बनती. दैट इज सॉर्ट ऑफ photosynthesis where glucose is actually made by plants by using CO2 and water. वाटर वो प्लांट ज़मीन से लेते हैं, CO2 एयर से. तो ग्लूकोज बनता है जो वो स्टोर करते रहते हैं और आप खाते हैं सारा टाइम. रिएक्शंस अल्कोहल के 3 है: कंबशन, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन. कंबशन में CO2 वाटर बनता है प्लस हीट मिलती है. ऑक्सीडेशन में, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अल्कोहल्स चेंज टू कार्बोक्सिलिक एसिड. और इसकी बैलेंसिंग नहीं चाहिए, बट ऑक्सीजन कभी दिखानी पड़ जाए तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे. O2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है. O2 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, वो इसमें KMnO4 से नहीं आ सकती. डिहाइड्रेशन इज व्हेन अल्कोहल इज चेंज टू एल्कीन, और इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड. इनफैक्ट एनी ऑफ द 2 कंडीशंस कैन बी यूज्ड. और मोस्टली आपको ये मिलेगी, कभी ये भी मिल सकती है. फिर मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिख दी है इसकी. इथेनॉल से इथीन बनेगा और प्रोपेनॉल से प्रोपीन बन जाएगा.
चलिए, अब कोई डाउट और क्वेश्चन है पूछ लें। आई पोस्ट दिस रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप परहैप्स राइट आफ्टर दिस क्लास। तो जिनकी रह गई है या जो नोट्स नहीं बना सके, दे कैन कंप्लीट इट फ्रॉम देयर राइट। चलिए, अब हम मंडे की क्लास में करेंगे पॉलीमर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे अभी याद आ गई, देखो ये पेज मैंने उसके लिए रखा। नेक्स्ट थर्सडे जो आ रहा है ना, इसमें बेटा आप लोगों का टेस्ट होगा, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये आप साथ साथ तैयारी करते रहें, कंप्लीट ऑर्गेनिक। ठीक है, कमिंग थर्सडे जो भी डेट बनती है। उसके बाद ये चीज़ इधर नहीं रुकेगी। ईद के बाद आप लोगों का होगा मॉक। ठीक है, अराउंड 12 to 15 अप्रैल। ठीक है, ईद के प्रॉब्ली एक वीक बाद तक मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना, उसके बाद हमने पास पेपर स्टार्ट कर लेने, लेकिन उससे पहले आई वुड रियली वांट कि आप लोग एक मुझे कॉम्प्रिहेंसिव मॉक दे दें, ताकि पता चले कि किसकी तैयारी किधर है। और ये इसकी एग्जैक्ट डेट मैं आप लोगों को कंफर्म करूंगा, बट लेकिन तैयारी अभी शुरू कर दें। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि टीचर सिलेबस ख़त्म करें तो फिर हम पढ़ना शुरू करें। ये गलत अप्रोच है। देखें, स्कूल्स में जनरली आप ओ लेवल आई जी सी एस करते हैं 2 to 3 ईयर्स में, कुछ स्कूल्स में तो 4 4 साल में। अभी यहाँ फॉर एग्जांपल हम 7 6 7 मंथ्स या 7 8, कुछ बच्चों ने तो जनवरी में ज्वाइन किया। 6 7 मंथ्स में आपने पूरा 3 साल का सिलेबस भी करना होता है। और सिर्फ सिलेबस नहीं कवर करना, आपने उसको 6 10 तक करना होता है कि आपको चीज़ें समझ आएं और आप पास पेपर कर लें। लेकिन अगर आप साथ साथ अपनी रिवीजन नहीं कर रहे, कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्वेश्चंस की, तो ईयरली पेपर्स करने में बड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये आप ऑर्गेनिक का टेस्ट तो प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करें नेक्स्ट वीक के लिए। मॉक की डेट मैं कंफर्म कर दूंगा, लेकिन ईद की जो भी छुट्टियां होंगी ना, उनको अपने वेस्ट नहीं करना पढ़ाई करनी बैठ के। ठीक है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने बोलना था, आई होप जो बाद में देखेंगे उन्हें भी आइडिया हो जाएगा। चलिए, दैट वुड बी ऑल देन, अल्लाह हाफिज़।